Okay, let's come to the next element of contract, or essential element of a contract after free consent. The sixth element is lawful object or legality of object. If you will see with the lawful or legality of the object, that means whatever object we are going to deal in a contract must be lawful, must not be banned in our country, must not be exempted of selling or making a contract. तो जो भी items, जो भी goods या जो भी base of the any of the contract है, जो भी object of a contract है जिस पे हम contract करने वाले हैं, वो आपका lawful होना चाहिए. It must be legal. If you will see the definition, according to section 23 defines unlawful consideration. Unlawful consideration. Unlawful consideration क्या है? Unlawful consideration object is one which is either, मतलब आपका जो consideration है जो हमने अभी तक पढ़ा है, that is it must be lawful, and if it is unlawful, तो what are the items or whatever the parameters those are been there for when we will say the consideration is unlawful. The first we will say here that is forbidden by law, that means which must be against the law, which must be in a matter of law, which must be in a favor of law. जो आपकी law कहती है कि इन objects पे आप transaction कर सकते हैं, इस type की considerations आप रख सकते हैं, तो ये particularly things आपको contract में रखनी है. तो forbidden by law, that means it must not be against by law. Come to the second point, that is, or it is of such a nature that if permitted, then it would defeat the provisions of law. That means ऐसी कोई भी particular objects, ऐसे कोई भी nature of the object which is permitted in the institution or which is permitted by the law, that must be there. It must not defeat the provisions of law, like maybe again a supply of a black market items, or maybe it a duplicate item, pirated items if you will say, or if you will say the supply of drugs, those are harmful for the health of the people, or ऐसे कोई भी certain things which are being banned in our country, again उन particular things पे अगर आप contract करते हैं, तो that will be again going to defeat the provisions of our law. It must not defeat the provisions of law. Next अगर आप बोलेंगे third point, that will be or the purpose of the contract is fraudulent. Again जो हमने fraud में पढ़ा है, it must not be fraudulent. ऐसा कोई भी contract जिसका object जो है वो fraud पे base होगा, again it will be not permissible. Next comes fourth point, or involves or implies giving injury or damage to someone or to someone's property. Again मैंने जिस पर्टिकुलर थिंग पे कॉन्ट्रैक्ट किया है वो पर्टिकुलर थिंग मेरी है, मुझे क्या करना है कि आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है. इट इज नॉट लाइक दैट. इट मस्ट नॉट इंजर एनी ऑफ द प्रॉपर्टी और समवन, और इट मस्ट नॉट डैमेज एनी ऑफ अदर्स प्रॉपर्टी और समवन. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कॉन्ट्रैक्टर इज बीन कॉन्ट्रैक्टिंग for building up a building of 30 particular levels, or it is with the 30 floors or 32 floors, and though the particular builder itself knows that in this area government or people are not liking this type of thing, like कि इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी तो लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी. अगर इस टाइप का माइंडसेट है कि मुझे अगर होती भी है तो मुझे क्या करना है, तो अगर इस टाइप की थिंग के साथ में आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सक्सेसफुल करने का चाहते हैं, तो इट विल बी नॉट गोइंग टू परमिटेड बाय द पीपल. आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी प्रॉपर्टी है मैं उसके अंदर कुछ भी करूं. द थिंग इज इट मस्ट नॉट. और मे बी अ फैक्ट्री इज बीन ओपन इन द एरिया वेयर देयर इज अ नंबर ऑफ रेसिडेंशियल पीपल्स आर बीन रिसाइडिंग और नंबर ऑफ पीपल्स आर बीन रिसाइडिंग, तो अगर वो दो द फैक्ट्री इज नॉट हार्मफुल, दो द पर्टिकुलर फैक्ट्री इज नॉट going to be involved any of the thing with the other people, then also if it is going to damage the peace or cleanliness or hygiene of that particular area, so again it will be not permitted by the court. That means the object has been again a unlawful object. Okay, come to the next, that is, or the court considers it as immoral or against the public policy. अगेन अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. हार्मनी आपको रखना है, आपको लोगों के बारे में भी सोचना है जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सिर्फ अपने लिए बिकॉज सामान मेरा है और पैसे मेरे खर्चे हो रहे हैं या मैं अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूँ, तो इससे लोगों को क्या करना, इट इज नॉट लाइक दैट. इट मस्ट नॉट बी इमोरल इन नेचर. इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी कि लोगों को नुकसान हो रहा है उससे या किसी तरीके का हार्मफुल हो रहा है या आज नहीं तो कल होगा.
तो इस टाइप की अगर टेम्परामेंट्स के साथ में आपका ऑब्जेक्ट डील होता है तो गवर्नमेंट आपको जनरली उसको मना कर देती है कि दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट. So again, this will be like all the courts consider it as immoral or against public policy. If a contract shows any of these elements, then it is unlawful or void under section 23. So under section 23, these type of, the first thing that is forbidden by law, second is defeat the provisions of law, or next is fraudulent, injury or damage to anybody or someone's property, and last one that is immoral or against public policy. If such type of thing will be there, so it will be unlawful in nature. Okay. Agreement declared to be void. Agreement declared to be void. That is, all those agreements which are declared valid, those can be taken into the consideration for a contract. मतलब अगर आपने जो agreement बनाया है, we know that कि a particular contract has been incomplete without of the two things. One is agreement and other one is enforceability of law. अगर आपका agreement गलत है और वो enforceable अगर आप कर पा रहे हैं तो भी आपका contract नहीं हो सकता. आपका agreement सही है और enforceable नहीं है तो भी आपका contract नहीं हो सकता. तो this particular point is so important. The reason behind that is many of the times we think that कि हमने agreement कर लिया ना मतलब हमारा contract is being completed. हमने एग्रीमेंट सही बनाया तो उसके बाद हम इसको एनफोर्स कर सकते हैं एंड इट इज वैलिड. बट द थिंग इज दोज एग्रीमेंट्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, जो वैलिड ही नहीं है इन द आई ऑफ द कोर्ट, these elements will be not termed with the valid elements. कौन से एलिमेंट, कौन से पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स होते हैं? लेट्स सी. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिक्लेयर्स सर्टेन एग्रीमेंट्स टू बी वॉइड. These are explained below. So these agreements which are being listed below, they are not termed the valid agreements. First is agreement restricting a marriage. अगेन कि आप उससे शादी नहीं कर सकते अगर इस टाइप की, या आपको पर्टिकुलर आपने अगर उससे शादी करी तो मैं दिस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा. तो द थिंग विल बी, या मैं उससे शादी आप करेंगे तभी मैं आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करूंगा. तो द थिंग इज लाइक दैट एग्रीमेंट्स रिस्ट्रिक्टिंग अ मैरिज, that will be with the again void agreements. Come to the next, agreements restricting trade. अगेन द सेम थिंग, जहां पर आपको ट्रेड करने से किसी और के साथ में मना किया जाता है. अच्छा, इस पे एक कंडीशन ये आती है कि आपके जो एलिमेंट्स पे, आपके टर्म्स कंडीशन पे अगर एक पर्टिकुलर पार्टी दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आप बोल सकते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर वो दूसरे के साथ में करता है. लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि जब तक आप मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप किसी और के साथ नहीं कर सकते. इट विल बी टोटली डिपेंडिंग अप टू देयर कैपेसिटी एंड देयर कैपेबिलिटीज. कम टू द नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ प्रोसीडिंग्स. एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, दैट मीन्स अगेन टू प्रोसीड. ये एग्रीमेंट तभी होगा जब आप प्रोसीड करेंगे या वो प्रोसीड नहीं करेंगे. तो अगेन सच टाइप थिंग विल बी द void agreements. Next is agreements void due to uncertainty. Uncertainty बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है, वो अनसर्टेन था, उसमें से कोई भी एक, या आई डोंट नो वॉट एवर यू आर गोइंग टू डील, वॉट एवर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड टू मी, आई एम गोइंग टू पे टू यू. मतलब कुछ भी जो आप मेरे को सप्लाई कर देंगे उस पर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं तो देयर मस्ट बी अ सर्टेनिटी. सर्टेनिटी मतलब एक कोई फीचर्स का सर्टेनिटी होना चाहिए. अगर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात कर रहे तो आपका एक सर्टेन तो होना चाहिए कि एटलीस्ट ये फीचर्स मेरे को चाहिए. ये फीचर्स, अगर वो फीचर्स भी अगर आप नहीं बताएंगे तो कैसे आपकी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी. तो आप मुझे कुछ भी डिलीवर कर दीजिएगा, आई विल पे फॉर यू. तो सच टाइप ऑफ थिंग्स विल बी नॉट इन अ पर्टिकुलर वैलिड एग्रीमेंट्स. Come to the next, that is agreement of wager are void. Agreement of wager or wagering agreements. Wagering agreements are those agreements which are with the terms of certain like lottery हो गया या आपके gambling हो गया. Certain things are with the wagering agreements. तो अगर wagering agreements होती है या agreements those are of wager, they are definitely becoming a void in India. तो इंडिया में आपके जितने भी वेजरिंग एग्रीमेंट्स है, लॉटरी, गैम्बलिंग्स, ऑल दोज कैसीनो, ऑल दोज थिंग्स आर बीन बैंड टिल इट इज नॉट गोइंग टू फुलफिल द पॉइंट्स कंसीडर्ड बाय द कोर्ट. तो
कोर्ट जो कंसीडर करती है, जिन पॉइंट्स पे बेसिक रखी है कि आप उसको गेम के तरीके से ले सकते हैं लेकिन आप उसको अर्निंग के सोर्स ऑफ से नहीं ले सकते, तो इट इज बीन बैन ऑफ इंडिया. तो अगेन एग्रीमेंट्स ऑफ वेजर एग्रीमेंट्स आर वॉइड इन इंडिया. Come to the next, eighth, that is certainty of meaning. Certainty of meaning, again certainty, as I told you, certainty must be there. कुछ भी uncertain type का आप बोल दे कि कोई भी सामान दे दीजिएगा, कोई भी goods दे दीजिएगा, any whatever you are going to deliver, I am going to pay for you. So this type of things will be not a valid in any of the contract. So certainty of meaning must be there when there is a valid contract. So the thing is, the meaning of agreement must be certain or capable of being made certain, otherwise the agreement will not be enforceable by law. मतलब अगर आपका एग्रीमेंट सर्टेन नहीं होता है या कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन मतलब आपने फीचर्स बताए हैं, अभी तो उसके पास सामान नहीं है, लेकिन जो आपने फीचर्स बताया है उस फीचर पे वो सामान आपको बनाकर दे देगा और उस पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो दैट विल बी ऑल्सो ओके कि आपने एक सर्टेन की मुझे एक रेक्टेंगल शेप का एक ग्लास बॉक्स चाहिए जिसका कवर इस तरीके का शेप का होना चाहिए, अभी आप मेरे को इसकी आप मेरे को 100 पीसेस डिलीवर कर दीजिएगा, एंड द पार्टी इज ऑल्सो एग्रीइंग ऑन कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क. तो इफ दिस इज दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड, मतलब बन सकता है, आज नहीं तो वो कल आपको जब भी आपका डिलीवरी डेट रहेगा तब तक वो आपको बना के दे देगा, एंड उसने एग्री किया है इस बात पे, तभी द थिंग्स आर बीन पॉसिबल फॉर यू एंड द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी पॉसिबल एंड कैन बी एनफोर्स्ड. और सर्टेन अगर आप बोले तो अभी जो आपके सामने ये सामान रखा है इसकी मुझे 100 बैग्स दे दीजिए, तो सर्टेन दैट मीन्स यू आर फिक्स्ड विथ कि एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया और जो दिखाया प्रोडक्ट आपने मुझे, यही प्रोडक्ट की मुझे 100 कॉपी चाहिए या यही प्रोडक्ट एग्जैक्टली मुझे डिलीवर चाहिए. तो द थिंग इज इट मस्ट बी सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन. तो सर्टेनिटी का एक एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल इज A agrees to sell 10 meters of cloth. There is nothing to show what type of cloth. The agreement is not enforceable for certainty of meaning. Again, the thing is, ए के पास सेल करने के लिए वो एक शॉपकीपर है और उसके पास 10 मीटर्स का क्लॉथ है ही नहीं जो जिसके ऊपर वो डील करना चाहता है. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई फीजिबिलिटी नहीं, क्लॉथ मतलब देयर आर नंबर ऑफ क्लॉथ्स, आपको तो बताना पड़ेगा ना, या तो उसका टेक्सचर बताइए या मटेरियल बताइए या स्पेसिफिकेशंस बताइए. तो जब आप स्पेसिफिकेशंस और मटेरियल बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, जब सारी पॉइंट्स आप डिफाइन कर रहे हैं और फिर वही पॉइंट का वही एक प्रोडक्ट आप कल लाकर दे देंगे तो इट्स ओके. बट 10 मीटर्स ऑफ क्लॉथ क्या होता है? क्लॉथ मतलब देयर आर नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ क्लॉथ्स अवेलेबल. So the thing is, if it was specified, then only it will be agreement that can be enforced in a court, or it will be enforceable for certainty of meaning. When the thing is not specified, it was not certain either of being capable or even with the certainty. The things are been not with the cloth, so that the contract is not a valid contract and it cannot be enforced in a court. So the thing is, certainty of meaning must be there when there is a contract. Come to the next, that is नाइन्थ वन, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. सर्टेनिटी एक अलग चीज होती है, पॉसिबिलिटी एक अलग चीज होती है. सर्टेन मतलब स्पेसिफिकेशन एंड पॉसिबिलिटी इज वो स्पेसिफिकेशन को कंप्लीशन की कितनी पॉसिबिलिटी है. If you will see, the agreement should be capable of performance. An agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced. मतलब अगर प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं और पर्टिकुलर थिंग पॉसिबल हो ही नहीं सकता बनाना, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड. अब आप बोलेंगे आपने सारे फीचर्स रख लिए हैं, सारे एसेंशियल्स रख लिए कॉन्ट्रैक्ट में, बट उस चीज की पॉसिबिलिटी ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैं तारे तोड़ के ले आऊंगा, या मैं 1 घंटे के अंदर बिल्डिंग बना के दिखा दूंगा, या मैं पर्टिकुलरली रेड सी विद इन अ फ्यू डेज में और विद इन फ्यू आवर्स में कंप्लीट कर दूंगा. तो द थिंग इज लाइक दैट, सर्टेन थिंग्स आर नॉट पॉसिबल. तो जो आपकी चीजें पॉसिबल ही नहीं है, आप उस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. देयर इज एन एग्जाम्पल, आई विल डिस्कवर अ ट्रेजर फॉर यू बाय मैजिक. दैट इज अगेन, मैं मैजिक से ट्रेजर ले आऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पर्टिकुलरली मैजिक से, कितना बड़ा भी मैजिशियन होगा, वो मैजिक से ट्रेजर नहीं ला सकता. ठीक है. तो द थिंग इज लाइक दैट, whatever the contract will be there, the base must be possible or the object must be possible to perform.
And the last essential, that is legal formalities. Legal formalities, again the formalities associated with the contract. अगर सामने वाली पार्टी ने आपको बोला है कि स्पोकन ही या टेलीफोन में ही आपको कन्वर्सेशन में के थ्रू ये बताना है कि आर यू एग्री, you have to communicate with this only, that is with the telephone. If the party is telling you have to give a proper letter within a format, that means you have to complete with the format of formality. तो जैसा जिस पार्टी ने बोला है उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है to make an agreement and to complete the contract. A contract may be made by word spoken or written. As regards the legal effects, there is no difference between a contract in writing or by words. However, in the interest of the parties, that contract should be in writing. The thing is, there is no difference कि आपने writing में बोला है, words में बोला है. The matter is only the agreement of both the parties. दोनों की उसमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, दोनों का उस टर्म्स एंड कंडीशन में राजी होना जरूरी है कि हाँ ठीक है, आप मेरे को फोन से बोल देंगे तो भी चलेगा, आप मुझे नहीं बोलेंगे और मेरे को पर्टिकुलरली सर्कमस्टेंसेस के थ्रू बता देंगे, अगर आप सुबह 5 बजे आ गए तो आई विल थिंक लाइक कि आपको चलना है मेरे साथ. तो दिस इज समथिंग फॉर्मेलिटी विच इज बीन रिक्वायर्ड और डिसाइडेड बाय बोथ द पार्टीज. तो जब दोनों एग्री होते हैं किसी डिसीजन पे फॉर कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटीज, दैट विल बी विद द लीगल फॉर्मेलिटीज. अब वो रिटर्न में हो कि वर्ड्स में हो कि वो आपके सर्कमस्टेंसेस हो, जो हमने इतने सारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं, तो अगर वट एवर कंडीशन इट इज गोइंग टू बी फॉलोड, the things will be applicable. Okay, now there are some other formalities which have to be compiled within order to make an agreement legally enforceable. तो लीगली एनफोर्सिएबल के लिए एक एग्रीमेंट को जब भी आपको कोई ना कोई प्रूफ देना होता है कि आपने एक्चुअली इससे कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो अगर आप प्रूफ देना होता है, दैट्स व्हाई वी जनरली मेक अ रिटर्न. हम शॉपकीपर से रिसिप्ट लेते हैं बस इसीलिए कि कल को अगर वो प्रोडक्ट खराब निकला तो हम कोर्ट में क्लेम कर पाए. तो हम कोर्ट में तो तभी क्लेम कर पाएंगे ना जब हमारे पास प्रूफ होगा. प्रूफ होगा, प्रूफ नहीं होगा तो हाउ वी आर गोइंग टू क्लेम. तो जनरली कोर्ट ये बोलती है कि सर्टेन टाइम यू मस्ट बी हैव अ लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड whenever it has been desired. तो generally return agreements are being considered or recommended, but it's not a compulsory. Totally depending up to the party. अगर आपके पास रिसिप्ट या रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो आप टेलीफोन का कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके भी दे देंगे तो भी प्रूफ है, बट द थिंग इज इट मस्ट बी कंपाइल्ड विथ सम ऑफ द थिंग्स. Next is, in some contracts statutory formalities must be compiled. स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटीज मतलब बहुत सारे ऐसे, लाइक पार्टनरशिप फर्म अगर एग्रीमेंट बनाती है तो उनको रिटर्न स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट बनाना कंपल्शन होता है. तो स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटीज मतलब लेजिस्लेटिव और लीगल फॉर्मेलिटीज आर बीन गवर्न बाय कोर्ट कि ये इसी फॉर्मेट में होगा तभी एक्सेप्टेंस होगा. अगेन फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल टेक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशंस आते, रिक्वायरमेंट्स, इन्विटेशंस आते हैं, उसमें उनका एक फॉर्मेट दिया होता है एप्लीकेशन बनाने का. आपका पर्सनल रिज्यूमे नहीं चलता, उनका एक फॉर्मेलिटी रहता है, एक पूरा एक फॉर्मेट रहता है. आपको इसी फॉर्मेट को ही कंप्लीट करके भिजवाना है और सबमिट करना है तभी एक्सेप्ट होगा, और भेजने के लिए भी आपको स्पीड पोस्ट में ही भेजना है. तो स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटीज मस्ट बी कंपाइल्ड, मतलब कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज होती है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ में जो आपको उसी में ही कंप्लीट करनी पड़ती है, एल्स इट विल बी नॉट वैलिड फॉर यू. There we have completed with the essentials of the contract. All the 10 essentials we have completed. Now we start with the last topic of our contract, that is discharge of contract. Discharge of contract is again a separate topic other than essential, which includes discharge is something, discharge का word ही पता चल रहा है कि खत्म, इसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट खत्म, इसके बाद से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला, या कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स है वो फिनिश हो गया या कंप्लीट हो गया, या मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, या इसके बाद से आगे मैं कॉन्ट्रैक्ट करके दे ही नहीं पाऊंगा, या उसके जो पर्टिकुलर टर्म्स थे फुलफिल नहीं कर पाऊंगा.
कोई भी रीजन, किसी भी रीजन के कारण अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो जाता है, चाहे छोड़ दिया हो, चाहे तोड़ दिया हो, चाहे कंप्लीट हो गया हो, किसी भी टाइप का डिस्चार्ज अगर होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो आप उसको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इफ यू विल सी द डेफिनेशन, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स termination of the contractual relationship between the parties. Termination of the contractual relationship between the parties. That means जो contractual relationship जो हमने बनाई थी legal relationship बनाते टाइम में, वो खत्म हो गई. Between the parties it has been ended. Now a contract is said to be discharged when it ceases to operate. मतलब ceases का मतलब होता है अब इसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं होगा, या ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी खत्म हो गया, या कंप्लीट हो गया तो खत्म हो गया, इसके आगे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे ना हम बात करेंगे और ना ही ये ऑपरेट होगा. दैट इज सीजेस. सीजेस मतलब स्टॉप, टू स्टॉप द ऑपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज व्हेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय इट कम टू एन एंड, that will be with the discharge of the contract. कि जो आपकी relations थी, जो आपकी rights थी, जो obligations थे, जो terms and conditions थे, वो खत्म हो गए. जब वो खत्म हो जाएंगे तो discharge of contract हो जाएगा. Come to the next, that is modes of discharge. If you will talk about modes of discharge, तो modes में a contract may be discharged either by the acts of the parties of the operation of law. Acts of parties may take different forms of like performance, agreement, breach, etc. While operation of law includes death, insolvency and etc. We will see these particular points furthermore in a source of a diagram. But the thing is modes of discharge मतलब कौन कौन से तरीके से आपका एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है. See to the diagram, that is modes of discharge. If you will see to the modes of discharge. Okay, modes of discharge. There are four modes. There are four modes. First one is by performance. Performance itself has been telling you क्योंकि आप दोनों ने अपने अपने पार्ट को परफॉर्म्स कर दिया या कर रहे हैं या करने वाले हैं, so that after this completion of the activity the कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज. जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ तोड़ने से ही नहीं डिस्चार्ज होता, अगर आपने परफॉर्म भी कर दिया है तो भी आपका पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है बाय परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस के अंदर दो चीजें आती है, एक इज वन इज एक्चुअल, अनदर वन इज अटेम्प्टेड. एक्चुअल इज एक्चुअली बोथ द परफॉर्मेंस इज बीन कंप्लीटेड. उसको गुड्स देने थे, आपको पैसे देने थे, दोनों ने अपना अपना पर्टिकुलरली फॉर्मेलिटीज कर दी और खत्म हो गया, और वहां से आपका डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया. That means the contract is been ended now because both the parties have performed their own task जो उनको करना था. सेकेंड आता है अटेम्प्टेड. अटेम्प्टेड मतलब ये जो अभी आप डिलीवर करने आ रहे हैं और ये जो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ या देने वाला हूँ, ये जो है ये लास्ट ट्रांजेक्शन है या ये अटेम्प्टेड है कि जो डिलीवरी ऑन गोइंग है, जो अभी ट्रांसपोर्ट में है या ट्रांसिट में है पर्टिकुलर सामान जो आने वाला है, और जो पैसे मैंने यहाँ से भेज दिए हैं, ये दोनों जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपका पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा. दैट इज अटेम्प्टेड बिकॉज आई हैव अटेम्प्टेड माई परफॉर्मेंस so that the contract will be discharged after this particular attempt. Okay, come to the next, that is by mutual agreement. By mutual agreement. अच्छा, एक तो हो सकता है म्यूचुअली खत्म होने का रीजन, दैट इज बाय परफॉर्मेंस. आपको परफॉर्म करना था, उसको परफॉर्म करना था, दोनों ने परफॉर्म कर दिया एंड द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंडेड. That is also known as with the by implied consent. By implied consent, it is something which either with the mutual agreement, मतलब दोनों पार्टी ने एग्री कर लिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब इसके बाद कंटिन्यू नहीं होगा, या इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को हम अब आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते. अब उसके पीछे भी रीजन है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक इतने सिंपल टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं होता. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, तो देयर आर नंबर ऑफ मोड्स आल्सो ऑफ डिस्चार्ज, जिसमें से म्यूचुअल एग्रीमेंट इज अगेन दोनों की एग्रीमेंट कि मुझे आगे कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं करना. सिर्फ इतने बोल देने से नहीं होता, देयर आर नंबर ऑफ पैरामीटर्स जिसके ऊपर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है. फर्स्ट होता है जो दैट इज रिटर्न, दैट इज नोवेशन. नोवेशन सेक्शन 62. नोवेशन, द वर्ड इटसेल्फ मीन्स दैट
some new changes, some new contract, some new points you are going to add in the existing points or existing contract. जो आपने एग्रीमेंट बनाया था या जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट डिसाइड करे थे या ड्रॉ किए थे और या जो पहले का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, बिकॉज उसके टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस हैं, सो दैट यू आर बीन मेकिंग अ सर्टेन डिफरेंट न्यू पॉइंट्स। तो आपने न्यू पॉइंट्स अगर बनाए हैं तो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। पुराने एग्रीमेंट के पॉइंट्स में, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में सिंगल फिगर भी अगर आपका चेंज होता है तो आपको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो नोवेशन इटसेल्फ इज बीन लाइक दैट, न्यू और इनोवेशन। अगर कोई भी टाइप का इनोवेशन आपने पुराने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट पे किए हैं या पहले के कॉन्ट्रैक्ट पे किए हैं उसी पार्टी के साथ में, तो आपको तो यू हैव टू मेक अ पर्टिकुलर न्यू एग्रीमेंट। तो जो पुराना है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ में डिस्चार्ज हो जाएगा। सेकेंड आता है रेसिशन। रेसिशन इज रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स तोड़ना। इफ द पार्टी हैज बीन रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, आप भी तोड़ दीजिए। एक सिंपल म्यूचुअल एग्रीमेंट का रीजन भी होता है कि अगर क्योंकि उसने डिलीवरी नहीं करी तो मैं क्यों पैसे दूं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन था उसका कोई मतलब नहीं है और वो डिस्चार्ज हो जाएगा उस दिन जिस दिन उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ और आपने परफॉर्म नहीं किया। तो द थिंग विल बी विद द रेसिशन, दैट इज टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ना आप कोई उसके बाद सू करने वाले हैं, ना ही आप उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेने वाले हैं, कुछ नहीं है। उसने तोड़ दिया, मैंने भी तोड़ दिया। उसने अपने ईगो पे लिया तो मैंने भी लिया, या उसने उसकी मर्जी थी, उसने परफॉर्मेंस नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट का तो मैं भी परफॉर्मेंस नहीं करूंगा। दिस इज ओनली विद द म्यूचुअल एग्रीमेंट। इट्स ओके, नो इश्यूज। आपने डिलीवरी नहीं करी तो मैं भी पेमेंट नहीं करूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट इज बीन रिसिड। Come to the next, that is alteration. Again, as I've told you, alteration, innovation और alteration में क्या difference होता है? Alteration है जो आपके existing points को major changes देता है। अगर existing points में major changes करते हैं तो alteration होगा। innovation में मतलब आपका न्यू पॉइंट्स डाला है, आपने नए पॉइंट्स डाला है, न्यू चेंजेस करे हैं, जो जो पॉइंट्स पहले नहीं थे उस पॉइंट्स को भी अब आपने ऐड किया है, तो वो नोवेशन होगा। अल्ट्रेशन में उसी पॉइंट्स में अगर आपने एडिटिंग करी है तो दैट विल बी विद द अल्ट्रेशन। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रेमिशन। रेमिशन क्या बोलता है? रेमिशन इज समथिंग लाइक, इट मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस। दैट मीन्स जो आपने प्रॉमिस किया था या जो पर्टिकुलरली पहले जिस टर्म्स पे आपने बात करी थी वो टर्म्स को ना देखते हुए आप दूसरे टर्म्स जो मिनिमम फुलफिलमेंट वाले हैं उसको डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज whatever terms, whatever points you have been decided, जो आपने पहले रिमिट किया था उसको चेंज करते हुए आप उसमें मिनिमम वैल्यू पे जा रहे हैं, मिनिमम अमाउंट पे जा रहे हैं और देन उसके बाद उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब आपने चेंजेस किया, अगेन द देयर आर बीन चेंजेस, म्यूचुअल एग्रीमेंट सेम पार्टी के साथ में अगर आपने चेंजेस किए हैं पॉइंट्स में और वो आपके पर्टिकुलर पॉइंट्स पहले वाली वैल्यू से कम थे तो पर्टिकुलर थिंग विल बी विद द रिमिशन। फॉर एग्जाम्पल, A owes B 5,000 rupees. A pays to B and B accepts. In satisfaction of the whole debt, 2,000 paid at the time and place at which 5,000 were payable. The whole debt is discharged. मतलब जो 5,000 एक B को देने थे उसमें से 2,000 रुपए उसने उसी टाइम दे दिए, अब बचा कितना? 3,000 रुपए। तो वो जो 3,000 रुपए है अब कम वैल्यू हो गई, तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो 3,000 रुपीज का बनेगा, या नया कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट बनेगा वो 3,000 रुपीज का बनेगा। तो अब जो है उनको 3,000 रुपीज ही सिर्फ पे करना है। तो द थिंग इज 5,000 का अमाउंट था, आधा ट्रांजेक्शन वहां हो चुका था कुछ पार्ट का, जो कुछ पार्ट बचा है अब जो एग्रीमेंट बनाना है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाना है वो उसी पार्ट का बनेगा, ना कि वो प्रीवियस जो पर्टिकुलरली जिसमें डील हुई थी। Okay, that will be with the remission. Come to the next, that is waiver. Waiver is something like, it takes place when the parties to a contract agree that they shall no longer be bound by the contracts. मतलब जब दोनों पार्टी ने एग्री किया है कि अब हम इसके आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं वेव करेंगे, नहीं पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कंसीडर करेंगे, ना ही उसको चलाएंगे आगे, तो द पर्टिकुलर थिंग विल बी टर्म्ड एज अ वेवर।
तो दैट विल बी अगेन म्यूचुअली, सब चीज देखिए अब सारे पॉइंट्स जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ रहे हैं, म्यूचुअल पॉइंट्स ही आ रहे हैं, दोनों ने बैठकर डिसाइड किया है कि हम इसके आगे अब क्या करने वाले, जब दोनों परफॉर्म या तो नहीं कर सकते या परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है या उसमें कुछ चेंजेस लाया है, वॉट एवर इट विल। तो वेवर इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट दिस अमाउंट टू अ म्यूचुअल अबेंडेंट ऑफ राइट्स बाय द पार्टीज। दोनों पार्टीज ने ये किया है कि म्यूचुअली कि हम आगे इस कॉन्ट्रैक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे किसी भी रीजन से, किसी भी तरीके से आपको छोड़ना है, वॉट एवर रीजन यू आर बीन प्रोवाइडिंग, बट द थिंग इज इट विल बी टर्म्ड एज अ की वेवर। एंड द लास्ट वन दिस दैट इज विद द merger. Merger is something like merger of the deals. For example, A holds a property with a lease. उस एक लीज की प्रॉपर्टी थी जो उसने क्यू से बोरो करी थी लीज में, ठीक है। जहां पर वो लीज खत्म हो गया उसके बाद से उसने उसको बाय कर लिया, ठीक है। लीज में लिया था मतलब रेंट में लिया था, लेकिन बाद में उसने बोला आप ये प्रॉपर्टी मुझे सेल कर दीजिए, एंड क्यू एग्रीड ऑन दैट। नाउ बिकॉज क्यू एग्रीड ऑन दैट, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो बना था कि रेंट का, अब जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सेलिंग का बनेगा। तो जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था, बिकॉज द थिंग्स आर बीन मर्ज्ड, बिकॉज द थिंग्स आर बीन डाइवर्टेड टुवर्ड्स द डिफरेंट थिंग, so the thing will be with the previous contract will be discharged, a new contract will be arised. Clear? Come to the third one, that is by impossibility of performance. By impossibility of performance means because the performance is impossible in nature, possible ही नहीं होता हो सकता आप, because contract तो आपने कर लिया था, आपने उस टाइम में ये सोचा कि ये तो particularly contract I am going to complete it definitely and it is going to be delivered to the contract करना is not a big deal, उसका performance करना is main important. If the possibility is not there in the performance, the contract will be definitely discharged. अब possibility जो है उसके 3 reasons हो सकते हैं. First one is impossibility known to the party at the time of the contract, मतलब दोनों पार्टी को पता था कि आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो अगर आपने तो भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, एग्रीमेंट बना लीजिए, बट परफॉर्मेंस नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए इट मस्ट बी कंप्लीटेड, इट मस्ट बी पॉसिबल। तो पॉसिबल ही नहीं था, और जब आप दोनों को पता था तो क्यों आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्यों बनाया वो तो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब पॉसिबिलिटी दोनों पार्टी को एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोन रहती है तो डिस्चार्ज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन एज आई टोल्ड यू, स्टार्स फ्रॉम हेवन, आसमान से तारे तोड़ के लेकर आ जाना, तो ये डील करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर परफॉर्मेंस तो हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल इन नेचर। बोथ द पार्टी नो डेफिनेटली, बट दे आर नॉट एग्रीइंग ऑन कि हाँ पॉसिबल तो है, मैं तो कर लूंगा, कोई कर नहीं पाया बट मैं कर लूंगा। आप बोलकर कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, बट इट विल बी डेफिनेटली गोइंग टू बी डिस्चार्ज। कम टू द सेकेंड वन, दैट इज इम्पॉसिबिलिटी अननोन टू द पार्टी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इम्पॉसिबिलिटी अननोन टू द पार्टी, अगर आप बोलेंगे कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब आपको पता ही नहीं था कि ये परफॉर्म हो पाएगा कि नहीं, तो इम्पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी agreed for a house, sale of house. A want to sell his house to B and B agrees for whatever amount they have decided. But the thing is, when they came to actual delivery, and when the house have to be hand over to the other particular party and other party has to pay the amount to the other person, the thing will, the हाउस गॉट फायर्ड, और उसमें आग लग गई या पूरा डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी रीजन से, मे बी अर्थक्वेक आ गया, मे बी फायर हो गया, मे बी किसी भी रीजन से। अब तो वो कंटेंट ही नहीं बचा जिसपे आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, पॉसिबल ही नहीं है दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हो सकता है कि वो प्लॉट वो सेल करना है तो आपको नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, हाउस तो है नहीं जिसपे डील होनी थी, तो इट इज अगेन इम्पॉसिबल इन नेचर। बोथ द पार्टी डजंट नो दैट कि ये परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा, बट क्योंकि जब एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ था तब तो हाउस भी देखा था, उसकी फैसिलिटीज भी देखी थी और अमाउंट भी डिसाइड हो गया था, लेकिन जब उसको परफॉर्म करने की बात आई तो आपका इम्पॉसिबल हो गया। ओके, एंड थर्ड आता है सब्सिक्वेंटली इलीगैलिटी or fraud. That means whatever the things where you are going to deal in the contract was impossible to perform because it is illegal in nature. आपको पता चल गया कि जो प्रॉपर्टी उसकी थी वो तो किसी और की थी और ये अपने नाम से सेल करने वाला था, तो आपने सडनली डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर दिया,
सडनली आपने उसको छोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो क्यों छोड़ दिया? बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस ड्यू टू सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और फ्रॉड। तो बिकॉज फ्रॉड था करके आपका पॉसिबल नहीं है और डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन लॉ कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। अब उसके अंदर अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो इट इज वेरी इजी टू डिफाइन। दैट इज डेथ। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आइदर ऑफ द पार्टी की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑटोमेटिकली बोलता है जब वो पर्सन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट इज मर्जर। अच्छा, अगर आप डेथ में एक और है कि अगर आप बोलेंगे कि उनके जो क्योंकि हमने तो पर्सन का साइन लिया, पर्सन के साथ में हुआ है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके पर्सन के नेक्स्ट पर्सन को करना पड़ेगा। तो इट इज नॉट बाउंडेड बाय द कोर्ट, इट इज लाइक दैट द पर्सन की डेथ हो गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं खत्म हो गया। अगर आपको स्टिल कंटिन्यू करना है तो अब जो नया मेंबर उसकी जगह पे आया है या उसका जो नेक्स्ट पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो नया एग्रीमेंट बनाइए, सेम कंडीशन पे भी बन रहा है तो भी नया एग्रीमेंट बनाइए, उसके साइन लीजिए और उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट आता है जो मर्जर। मर्जर यहाँ पर जो मर्जर है, ऑपरेशन ऑफ लॉ। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी फॉर सर्टेन ऑफ द डिलीवरी, ठीक है, ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पर्टिकुलर कुछ गुड्स को डिलीवर करने के लिए, और बाय चांस विद इन नेक्स्ट मंथ बाय डिसीजन ऑफ देयर ओन ए हैज मर्ज देमसेल्व्स विद सी, उसने अपनी कंपनी का एक मर्जर कर लिया सी के साथ में, तो जो ए के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो तो खत्म हो जाएंगे। खत्म कैसे होंगे? परफॉर्मेंस चल रहा होगा तो भी वो खत्म करके आपको नए एग्रीमेंट साइन करवाने पड़ेंगे जो एक नया कंपनी का नाम A&C लिमिटेड के नाम से बना है या A&C प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बना है या उन्होंने XYZ कुछ भी नाम दिया है, तो जो नई नाम की जो कंपनी रहेगी आपको उसके साथ में फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करवाना पड़ेगा और फिर से एग्रीमेंट्स बनाना पड़ेगा। तो द ओल्ड एग्रीमेंट्स विल बी डेफिनेटली गोइंग टू बी डिस्चार्ज हियर। थर्ड आता है इंसॉल्वेंसी। अगेन इंसॉल्वेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था इंसॉल्वेंट पर्सन्स के साथ में या बैंकरप्ट पर्सन्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डन। नेक्स्ट आता है अनऑथराइज्ड अल्टरेशन। अनऑथराइज्ड अल्टरेशन मतलब ऐसे कोई पॉइंट्स जो आपको माइनर मस्ट बी 18 ईयर्स अबव, एंड आपने 18 ईयर्स अबव में एग्रीमेंट तो साइन करा लिए लेकिन बाद में क्या किया कि 16 वालों से भी काम करवा ले रहे हैं, या तो ऐसा किसी भी टाइप का अल्टरेशन जो आपने दिया है जो लॉ के अगेंस्ट है वो भी आपका ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज लैप्स ऑफ टाइम। टाइम लैप्स हो गया ऑटोमेटिकली, कल शाम तक अगर डिलीवरी नहीं हुई तो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। The contract will be automatically discharged by the lapse of time, by the reasonable or stipulated time period में, because you have not delivered, so that the things will be lapse. Come to the last, that is by breach of a contract. This is not so simple, that is the breach of a contract. The contract, if the previous other modes are very understood कि it's okay, performance हो गया, mutual easy है, बहुत easy, ज़्यादा legal actions कुछ भी नहीं होगा because it is just genuine. Breach of contract is something कि आपने तोड़ दिया, आपको नहीं तोड़ना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करना था, तो भी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया या तोड़ दिया, वो आपका वेट कर रहा था कि आप डिलीवर करेंगे और आपने डिलीवरी नहीं करी, तो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्म्ड एज अ ब्रीच। तोड़ देना कॉन्ट्रैक्ट को जानबूझ करके, गलती से, धोखे से, वॉट एवर यू हैव डन, इफ अगर आपने तोड़ दिया है तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जनरली कोर्ट में सू होते हैं। कोर्ट में इन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स का लीगल एक्शन होता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाता है। आप जबरदस्ती करिए, आपका नुकसान नहीं हुआ है तो भी अगर सामने वाली पार्टी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है तो भी आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, आप उसको कोर्ट में लेकर जा सकते हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट कर दिया, आपको परेशान कर दिया, एंड नंबर ऑफ थिंग्स। Under breach of contract, there are two types. One is actual breach and other one is anticipatory breach. Actual breach is something which will be termed as obvious. It occurs when a party fails to perform. मतलब जब पार्टी ने परफॉर्म ही नहीं किया तो ये एक्चुअल ब्रीच हुआ कि उसको तोड़ना था इसलिए उसने परफॉर्म नहीं किया।
दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग, तो आप इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को भी कोर्ट में ले जा सकते हैं कि उसको तोड़ना था इसलिए उसने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, बट उस मेरा जो डैमेजेस हुए, जो मैं इतना वेट किया, जो मेरे को मेंटल स्ट्रेस मिला, ये सारी चीजों के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज इट्स टोटली अप टू यू, बाय ब्रीच पे आप कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जाते हैं कि नहीं सू करने के लिए, इट्स टोटली डिपेंडिंग अप टू यू। एक्चुअल ब्रीच का बेसिकली मतलब यही है कि एक्चुअली बिकॉज परफॉर्मेंस ऑफ द थिंग्स, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं हुए थे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो गया। सेकेंड जो आता है दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच इज समथिंग विच इज एंड ब्रीच इज अ ब्रीच occurring बिफोर द टाइम पीरियड फिक्स्ड। मतलब परफॉर्मेंस के पहले अगर आपने तोड़ दिया, परफॉर्मेंस करने से पहले आपने तोड़ दिया पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को, तो दैट विल बी विद द एंटीसिपेटरी ब्रीच। मुझे आपके साथ आगे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ आगे काम नहीं करना, दैट विल बी ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटीसिपेटरी इन नेचर। बिफोर द परफॉर्मेंस, बिफोर द टाइम पीरियड लैप्स, यू हैव कंप्लीट ब्रीच, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, दैट विल बी एंटीसिपेटरी इन नेचर। To the breach of a contract. Again, breach of the contract by party is an important method of discharge of a contract. As I've told you, it is very important because इस particular type के things में हम generally action लेते हैं उसके against में कि ये particular party ने मेरे साथ contract जो किया था उसको तोड़ दिया, तो now you will be going to term that कि the contract must be sued to the court and legal actions must be taken. So that will be with the breach of a contract. That's why it is very important in a discharge of a contract. It is a term where either party commits or the party become entitled to any of the benefit in the remedies. मतलब या आपका डैमेजेस फुलफिलमेंट, आपको किसी ना किसी तरीके का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं अगर ब्रीच हुआ है तो। एंटिसिपेटरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। रेमिडीज फॉर ब्रीच, अब तोड़ दिया है तो तोड़ दिया है, सामने वाली पार्टी ने भी तोड़ दिया है और आप भी अब उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता आगे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आप उसके लिए क्लेम करिए बिकॉज सामने वाली पार्टी ने तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो मैं क्या करूं, अब मेरे को ये करना चाहिए कि मुझे लीगल एक्शन ले लेना चाहिए, रेमेडीज के लिए जाना चाहिए, कहाँ, कोर्ट के पास। तो किस टाइप की रेमेडीज कर सकते हैं, द फर्स्ट थिंग इज रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसने तोड़ दिया, आप भी तोड़ दीजिए, जो हमने म्यूचुअल एग्रीमेंट में भी पढ़ा था। रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज बिकॉज द पार्टी हैज ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट सो दैट आई विल ऑल्सो ब्रीच। अगर उसको लग रहा है कि वो परफॉर्म नहीं कर सकता है तो ठीक है, मैं भी अब नहीं आगे परफॉर्म करूंगा या मैं भी तोड़ देता हूँ। तो सिंपल है, रिसेशन कर दीजिए, तोड़ दीजिए कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी नहीं हुई गुड्स की, उसने पैसे नहीं दिए, वॉट एवर इट इज, तो मैं भी नहीं दूंगा या मैं भी पर्टिकुलरली डिलीवरी नहीं करूंगा। तो थिंग्स विल बी विद द रिसेशन ऑफ द कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट रेमेडी है कि उसने तोड़ दिया तो आप भी तोड़ दीजिए। सेकेंड है क्लेम फॉर डैमेजेस। अगर आप तोड़ना चाहते, आप आगे कंटिन्यू तो उसको नहीं करवा सकते अभी फिलहाल, तो आप क्या करें, कोर्ट में लेकर जाएं, उसको डैमेजेस फुलफिल करें। पहले वाले केस में सिर्फ तोड़ दिया था, उसने तोड़ दिया, आप भी तोड़ दिए, आपने भी ब्रीच कर दिया, इट्स ओके, कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो गया। सेकेंड वाले इसमें क्लेम फॉर डैमेजेस, तोड़ तो दूंगा मैं, लेकिन इसको मैं बताता हूँ, कोर्ट लेकर जाता हूँ, लीगल एक्शंस लेता हूँ, थोड़ा परेशान करता हूँ, तब जाके मैं ब्रीच करूंगा। तो ब्रीच करने के लिए भी आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इफ यू विल सी हियर देयर आर 4 थिंग्स रिटर्न ओवर देयर, दैट इज ऑर्डिनरी, स्पेसिफिक, नॉमिनल एंड विंडिक्टिव। इफ यू विल टॉक अबाउट ऑर्डिनरी डैमेज क्या है, वेरी पर्टिकुलरली स्पेसिफिक, जनरल डैमेज हुआ है, इतना पर्टिकुलर आइटम का नुकसान हुआ है, अब जो मेरे को है, या नेचुरल डैमेज है, इतने का नुकसान हुआ है, इतना अमाउंट लेकर दे दीजिए। दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल बी, these are the damages which arise naturally in the usual course of time from the breach. There may be no monetary loss. आपको monetary loss नहीं हुआ है, you don't have monetary loss in this, just you are being claiming for damages because it is जनरल इन नेचर। मेरा इतना टाइम स्पेंड चला गया, मेरा इतना मेंटल स्ट्रेस हो गया, या मुझे इस टाइप का नुकसान हुआ है जो कि मैं इतने दिन तक वेट करता रहा और इसने मुझे बोल दिया अचानक से कि ये कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं करेगा। तो इस टाइप की ऑर्डिनरी और जनरल डैमेजेस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं कि वो मिनिमल अमाउंट जो भी आपको, मिनिमल नहीं, जितना भी अमाउंट
अमाउंट आप राइज कर पाए उस पर्टिकुलर पार्टी से आप ले सकते हैं थ्रू द क्लेमिंग। सेकेंड आता है दैट इज स्पेसिफिक डैमेज। स्पेसिफिक मतलब एग्जैक्टली मुझे इतना फिगर का लॉस हुआ है, इतना फिगर का, जो मैं अभी तक इतना वेट कर रहा था, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स जो अदर पार्टीज आई उनको मैंने मना कर दिया और इतना मेरा नुकसान हो गया कि इसकी पर्टिकुलर इसके वेट करने के चक्कर में या इनके कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में मैंने किसी और से पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो सच टाइप ऑफ थिंग विल बी स्पेसिफिक इन नेचर। Come to the next, that is nominal breach. Nominal will be minimal, where the injured party suffered with minimal damage or loss. अच्छा, पहले वाला था नो लॉस नो डैमेज, सेकेंड वाला था स्पेसिफिक डैमेज, और नॉमिनल जो है वो मिनिमल डैमेज, जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। आपकी गाड़ी वहां से निकली थी और इसने बोल दिया मत भिजवाइए, बट आप बोले मैंने तो अपनी गाड़ी वाले को बुला लिया था, उसको बाकी और कोई काम लेने के लिए मना कर दिया था, उसके बाद बोला प्रोडक्ट को डिलीवर करने जाना है, इतने दूर जाना है, इतना सब डिसीजन ले लिया था और उसको स्टार्टिंग अमाउंट भी दे दिया था फ्यू। तो वो जो मिनिमल लॉस हुआ है जिसको आप इग्नोर कर सकते थे, लेकिन तो भी आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरा जो नॉमिनल लॉस है ये द पर्टिकुलर विल बी रीइंबर्स्ड बाय द कोर्ट थ्रू क्लेमिंग। एंड फोर्थ आता है दैट इज विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेज आपको ये बोलता है बिकॉज आपको ना कोई नुकसान हुआ है, ना कोई लॉस हुआ है, ना कोई स्पेसिफिक लॉस हुआ है, किसी भी तरीके का कोई लॉस हुआ ही नहीं है, लेकिन आप जो लीगल एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जो आप कोर्ट में क्लेम करने जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि मैं इसको पनिश करना चाहता हूँ, जो इसने मेरे को परेशान नहीं किया तो भी मेरे ये ईगो पे लग गया है, तो मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को नीचा दिखाना है या उसको पनिश करना है या उसको परेशान करना है, उसके लिए जब आप क्लेम करेंगे तो ये आपका विंडिक्टिव डैमेजेस क्लेमिंग होता है, या ये आपका ब्रीच का रेमेडी में विंडिक्टिव होता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज सू फॉर क्वांटम मेरिट। सू फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट इज अ पर्टिकुलर टॉपिक अंडर अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमने नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस किया है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब आपका सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बन जाता है, जबकि ना आपने सोचा था ना सामने वाली पार्टी ने सोचा, उस टाइम ये टर्म क्वांटम मेरिट आते हैं। जो मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया था, ए को जो डिलीवर करने थे गुड्स बी के यहाँ, ए ने के सर्वेंट ने डिलीवर कर दिया सी के यहाँ, तो ए और सी के बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा बिकॉज उसके गुड्स की डिलीवरी हो गई है और सी जो है उसको गुड्स को यूज कर चुका है। तो इसके टाइम में आप क्वांटम मेरिट अप्लाई करते हैं, क्योंकि गलती आपकी थी या आपके सर्वेंट की थी और गुड्स आपने डिलीवर कर दिए थे, तो अब वो गुड्स तो या तो वापस ले लीजिए पूरे, जो नहीं मिल सकते क्योंकि सी ने तो कुछ पार्ट उसमें से यूज कर लिया था, तो जो उसने यूज कर लिया था उसके पैसे दे दे और जो गुड्स बचे हैं वो वापस कर दे। ये एक टर्म है, तो दिस विल बी टर्म लाइक क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज यू कैन अर्न, जितना पैसा आप उससे निकलवा सकते हैं, जितना आप उससे अर्न कर सकते हैं, गलती से धोखे से लिया या जानबूझ करके या आपकी गलती थी, वो सब चीज छोड़ते हुए आपको सिर्फ ये करना है कि मेरे को जो लॉस हुआ है या जो पर्टिकुलरली मेरा स्पेंड हुआ है उससे वो ये मेरे को पूरा देने को तैयार नहीं है, तो जितना मेरे को दे दे या जितना ज्यादा से ज्यादा ये मुझे दे दे या उसके ऊपर से मेरे को जितना क्लेम करना है वॉट एवर आई कैन क्लेम, तो sue for quantum merit that will be as much as you can earn from the party, that will be with the quantum। तो आपने जो sue करा है, जो आपने लीगल एक्शन लिया है, वो क्यों लिया है? just because for the sake of earning more and more from that particular party। तो this type of thing will be with the sue for quantum merit। ये हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जब होता है जहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ जाता है, जनरली वहां पर भी ये अप्लाई होता है, दैट इज विद द as much as earn we can earn from the parties। Now come to for the next, that is sue for injunction and specific special performance। इंजंक्शन में ऐसा होता है a particular party will be told to perform some of the things because उसके बिना वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बिना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, दैट विल बी विद द sue for injunction। दैट इज sue for injunction, दैट इज आई टोल्ड यू कि बिकॉज सामने वाली पार्टी के बिना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो सकता, या टिल आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड द अदर पार्टी, द पर्टिकुलर पार्टी मस्ट हैव टू फुलफिल द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। बट उसमें एक कंडीशन ये है कि
कोर्ट उनको ये बोलेगी कि आपको ने जो टर्म्स लिखे थे आप उसको कंप्लीट करिए। आप जो टर्म्स जो इसके अगेंस्ट में आपको बोला था जब तक ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती आप कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं कर सकते। तो जब तक आप दूसरी फिल्म साइन नहीं कर सकते बोला है, इफ स्टिल फिल्म में स्टार ने कोई फिल्म साइन कर दी तो कोर्ट से एक ऑर्डर जाएगा कि आपको दूसरी फिल्म साइन नहीं करनी है और आपको इसी को कंटिन्यू करना है, या आपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस की ब्रीच करी है। तो ब्रीच को रोकने के लिए आप कोर्ट से एक ऑर्डर भिजवाएंगे कि द टर्म्स यू हैव अप्लाइड, वो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करना चाहता, वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखना चाहता है, बट उसने उसका एक पॉइंट का के अगेंस्ट में जाके काम किया है या एक पॉइंट का उल्लंघन किया है। तो जब उसने इस पर्टिकुलर पॉइंट का उल्लंघन किया है तो आप कोर्ट से एक लेटर भिजवा दीजिए कि दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी यू हैव डन, सो दैट यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस एक्टिविटी for the further process till the particular contract has been completed। और जो लास्ट आता है वो है स्पेशल परफॉर्मेंस। स्पेशल परफॉर्मेंस मतलब अच्छा, एक पॉइंट तोड़ देना इज समथिंग डिफरेंट और आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखना चाहते हो वो एक बात होती है। स्पेशल परफॉर्मेंस की आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हो, आपने को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है इसलिए आप उसके पॉइंट्स के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, तो कोर्ट से आपको जो लेटर जाएगा वो उस परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने का जाएगा कि आप ये फिल्म कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक फिल्म जो बनना स्टार्ट हुई है वो आपके साथ हुई है और वो किसी और फिल्म स्टार के साथ में कंटिन्यू नहीं हो सकती, इसलिए आपको ये स्पेशल परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। एंड इफ सच टाइप ऑफ थिंग्स विल बी ऑर्डर्ड बाय कोर्ट तो दैट विल बी फॉर द स्पेशल परफॉर्मेंस। आपको ये परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी विद द स्पेशल परफॉर्मेंस। तो ये रेमेडीज होती है ब्रीच की। इफ यू विल सी रेसिशन, उसने तोड़ दिया आप भी तोड़ दीजिए। क्लेम फॉर डैमेजेस, आपने क्लेम कर दीजिए डैमेजेस के लिए, ब्रीच तो करना है ठीक है, आप भी करना कर लेंगे, लेकिन मुझे ये सारी पर्टिकुलर बेनिफिट्स दिलवा दीजिए। सू फॉर द कोर्ट, sue for the quantum merit, that is again as much as you can earn from that breach। sue for the injunction, that means वो पॉइंट तोड़ने के लिए आप वो एक लीगल एक्शन ले सकते हैं कि इसने जो पॉइंट लिखा था उसके बिहाफ पे इसने इसको अवेल नहीं किया। एंड लास्ट दैट इज स्पेशल परफॉर्मेंस, दैट विल बी विद द ब्रीच नहीं हो सकता, कुछ हो जाए बिकॉज द थिंग्स विल बी नॉट कंप्लीटेड अगेंस्ट यू, सो दैट इट मस्ट बी कंप्लीटेड। ये ऑर्डर्स जाएगा या एक सू हो जाएगा कि आपको स्पेशल परफॉर्मेंस करवाने के लिए पर्टिकुलरली रेमेडीज क्लेम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आल्सो। थैंक यू।